We are doing algae, and in algae today we are going to start with a क्लोरोफाइटा और क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। Green algae has 90% of the species they are freshwater and 10% are marine water. These algae may be colonial like volvox, colonial motile, sorry. Or they may be colonial non-motile. Non-motile like hydrodictyon, simultaneously we are drawing some example here. There are unicellular motile, like Chlamydomonas, unicellular motile Chlamydomonas or unicellular non-motile क्लोरेला, ये स्पेस एल्गी भी कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे आपको चार नाम अभी बताए मैंने, वोल्वोक्स, हाइड्रोडिक्टियन, यूनिसेलुलर मोटाइल दैट इज क्लेमाटोमोनास, एंड देन क्लोरेला। Now we are doing the another part, that is they have a very important part. They have a cup shaped chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाटोमोनास। Whereas here we have these two filamentous. Again, the difference how we are supposed to, the width of the filament or filamentous cells, they are broader, they are narrower.
now they have girdle shaped chloroplast. Girdle shaped chloroplast, and they have a spiral shaped chloroplast. And here this is the lowermost cell is a non-green, hold fast, non-green, hold fast, and this is a girdle shaped, this is a ribbon shaped, spirally coiled, this is non-green hold fast. So this is a Ulothrix, and this is Spirogyra. स्पाइरोगेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉन्ड सिल्क कहते हैं। अगर हम कहीं पानी के पास से, खड़े पानी के पास से गुजरे तो हमें ग्रीन ग्रीन सी काई सी जमी हुई दिखेगी पानी में, खड़े पानी में, उनको देखें तो वो दे आर स्पाइरोगेरा, पॉन्ड सिल्क कहते हैं इसको। शैलबाल किसी पे चमकते हैं वो, शैल होता है राजकुमारी, प्रिंसेस के बालों की तरह चमकते हैं, ऐसे लोग कहते थे पहले, तो शैलबाल से इसका हिंदी में नाम आ गया शैबाल बोलते हैं इसको। तो ये हमारे पास पहले देखिए, इट्स अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू डायग्राम्स कि ये कॉलोनियल है, ये वॉल्वैक्स है, इसे एक और है दैट इज हाइड्रोडेक्टियन, ऐसा क्लेमाइडोमोस है, एक और है क्लोरेला, then we have a Ulothrix, and then we have a Spirogyra. Look at the chloroplast, how they differ in a chloroplast. So this is the first part in a algae. Now we are continuing with a here we have another filamentous. It is filamentous, branched filamentous rather we can call it. Cara, इट इज अ ब्रांच्ड फिलामेंटस। ये फिलामेंटस थे बट अनब्रांच थे। कारा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें यहां सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, एक ऊपर है सेक्स ऑर्गन और एक नीचे है, अपर एंड द लोअर साइड, एंड द अपर वन को हम कहते हैं, अपर वन इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन that is known as oogonium, and lower one is the male sex organ, we call it antheridium. Oogonium
Chelidonium and Anthridium. That is in Chara. Chara बताया मैंने, Chara is the branch filamentous. Then we have a certain zoospore of Chlamydomonas. This is the Chlamydomonas, and these are the spores coming out of them. These are zoospores of Chlamydomonas. Zoospore of Chlamydomonas. So this is the first part. We are supposed to know which one are the unicellular, which one are multicellular, which are colonial, which are filamentous, which are और भी करेंगे हम, which are multicellular, thalloid कौन कौन से हैं. Then we are supposed to know their characters, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ग्रीन एल्गी में हमने किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. मैंने बताया था DCB, तो क्लोरोफिल इसमें होगी, A तो सभी में होगी, एंड क्लोरोफिल B विल बी देयर. दे आल्सो हैव कैरोटीन. The green color is because of chlorophyll. Is due to chlorophyll. And reserve food material. Reserve food material is a starch. हमने स्टार्ट किया था रोडोवाइटा से. रोडोवाइटा में थी फ्लोरिडियन स्टार्च, और फियोफाइटा में थी लैमिनेरियन स्टार्च, और यहाँ है स्टार्च. सो दिस इज अबाउट द ग्रीन एल्गी. अब ग्रीन एल्गी की कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है. वो क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? एक इसमें सिफेल्यूरियस, सिफेल्यूरियस एक एल्गी है विच इज पैरासाइट. पैरासाइट इन द टी लीव्स, चाय के पत्तों में. ये एक बीमारी कॉज करती है जिसको बोलते हैं रेड रस्ट. यहां देखिए ध्यान से, अदरवाइज हमने रस्ट पढ़ा है फंजाई में. तो रस्ट इज कॉल्ड बाय पक्सीनिया. पक्सीनिया एंड फंजाई इज मेनली कंट्रीब्यूटिंग फॉर रस्ट. बट यहां ग्रीन एल्गी भी है, सिफेल्यूरियस. सो दिस इज अबाउट द रस्ट के बारे में एक एडिशनल पॉइंट. तो देन इज ग्रीन एल्गी फूड के काम भी आती है. कौन सी? क्लोरेला. ये देखिए स्पेस में भी, ये जो स्पेस रिसर्च में जाते हैं वो इसको लेके जाते हैं साथ. क्लोरेला, इट इज रिच इन विटामिन A, B, C एंड K. क्लोरेला, इसके क्लोरेलिन एक एंटीबायोटिक भी बनती है.
एंटीबायोटिक सो क्लोरेला और कोरेलिना, फिर देखिए ये डिफरेंस, एक कोरेलिना किया हमने और एक है क्लोरेला। तो इन चीजों से आपने इन चीजों को रिटेन करना। कोरेलिना क्या है? इट इज अ रेड एल्गी, और क्लोरेला क्या है? इट इज ग्रीन एल्गी। तो ऐसे बॉक्सेस में आपने इनको रिटेन करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये फूड के बारे में बता दिया, एंटीबायोटिक्स के बारे में बता दिया, स्पेस रिसर्च के बारे में बता दिया। स्पेस रिसर्च में ये यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड O2। So this is about the economic importance of green algae। एक बार फिर से हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी ग्रीन एल्गी अभी किया। ग्रीन एल्गी की एक हम लिस्ट बनाते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह याद रहे क्या क्या हमने आज किया इनको। तो पहला हमने वॉलवॉक्स, दूसरा हमने क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को क्रायोफाइट भी कहते हैं। क्रायो मैंने बताया था आपको कल परसों, क्रायो इज अ स्नो में जो रहते हैं। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगेरा, देन क्लोरेला, देन हाइड्रोडिक्टियन, देन एक और आपने याद करनी है युल्वा। इट इज अ मल्टीसेलुलर थैलॉइड। Then after Ulva we did Kara। Ulva के बाद हमने किया कारा, एंड आफ्टर कारा we did Cephaloreus। तो ये पहला, ये सॉरी, ये दीज आर द नेम्स जो हमने रिटेन करने हैं रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी के। अब आइए हम बात करते हैं कि एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी लाइंस क्या हैं, ग्रीन एल्गी से क्या क्या चीजें की एवोल्यूशन हुई। तो ग्रीन एल्गी ये माना जाता है कि 3 लाइंस हैं इसमें, कि यहां से सारी इवॉल्व हुई है क्लेमाइडोमोनास से, यूनिसेलुलर से हुई। यूनिसेलुलर एक एल्गी थी, तो 3 लाइन गई एवोल्यूशन की। एक लाइन एवोल्यूशन की कि ये बहुत सारी आपस में इकट्ठी होनी शुरू हुई, और 500 के करीब एक कॉलोनी में इकट्ठे हो गए, वॉलोड हुए, देयर मोटाइल कॉलोनी बन गई।
दैट इज वॉलवॉक्स। और उसके बाद ये लाइन यहीं खत्म हो गई, आगे नहीं एवोल्यूशन नहीं हुई। तो इस लाइन को बोला गया वोल्वोकाइन, एक टर्म दी गई वोल्वोकाइन लाइन ऑफ एवोल्यूशन, वोल्वोकाइन लाइन ऑफ एवोल्यूशन। और एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन गई क्लोरोकोकाइन, क्लोरोकोकाइन में ये एल्गी में ऐसे मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बनी ये मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन बनी और ये सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मैंने बताया आपको, सिनोसिटिक इज अ मल्टीन्यूक्लिएट। ये सिनोसिटिक इसकी एग्जांपल है कौलरपा, कौलरपा। तो कौलरपा इज अ सिनोसिटिक, ये भी डेड एंड हो गया, इसके बाद भी एवोल्यूशन नहीं हुई। देन ये एल्गी ऐसे एवोल्यूशन हुई कि इसके फिलामेंट बनने शुरू हो गए, फिलामेंटस। टेट्रास्पोरा, ये टेट्रास्पोरा जो बना, टेट्रास्पोरा से फिर आगे यूलोथ्रिक्स, पायरोगैरा एंड लैंड प्लांट। तो यहां से एवोल्यूशन हुई है थर्ड वाले से। तो इसको बोला हमने टेट्रास्पोराइन, टेट्रास्पोराइन। देखिए ध्यान से सुनिए, पहला आ गया वोल्वोकाइन, ये डेड एंड हो गया यहां। देन सेकंड इज टेट्रास्पोराइन, देन थर्ड इज क्लोरोकोकाइन। तो अब हमने दो और लर्न कर लिए यहां, जो हमने पहले किए थे उनमें एडअप करेंगे। वन इज द कौलरपा एंड अदर इज टेट्रास्पोरा। यहां देखिए, वन इज कौलरपा, कौलरपा क्या है, सिनोसिटिक है, एंड अदर इज टेट्रास्पोरा, अदर इज टेट्रास्पोरा। तो इन दिस वे वी हैव रिटेन के कैसे एवोल्यूशन हुई। तीन लाइन है एवोल्यूशन की। कई बार ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन कौन सी लाइंस ऑफ एवोल्यूशन है, ऑल्दो इट्स नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, बट समटाइम्स इट इज आस्क्ड। सो ये आ गया एवोल्यूशनरी लाइंस। तो अब देखिए, हमने अभी ये एल्गी कर लिया पूरा, और एल्गी में तीन हमने एल्गी किए, लेकिन ये अब बात है कि कहीं आप इनको भूल ना जाएं। तो एक आ गई रेड एल्गी, एक आ गया ब्राउन एल्गी, और एक आ गया ग्रीन एल्गी। रेड, ब्राउन एंड ग्रीन, ये जो तीन एल्गी हैं, अब हम इन एल्गी को विल राइट। क्या क्या थी ये रेड एल्गी? रेड एल्गी हम पहले बताया था बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम। फिर दूसरा बताया था कॉम्प्सोपोगोन, ये दोनों मैंने बताई थी आपको कि ये दोनों फ्रेश वाटर है। देन पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम बताया था टेरेस्ट्रियल है। देन बताया था मैंने कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस बताया था कि ये आयरिश मॉस कहते हैं इसको, ग्रेसिलेरिया, कॉन्ड्रस ग्रेसिलेरिया अगर अगर वो निकलता है। देन जेलिडियम, जेलिडियम, देन ग्लायोबेल्टिस, ग्लायोबेल्टिस, ग्लायोबेल्टिस के बाद रोडिमिनिया,
इतनी बार करवाने के बाद भी याद नहीं रहेगा तो देन आई एम सॉरी। फिर रोडोमिला, रोडोमिला के बाद है कोरेलिना, कोरेलिना किडनी के वो देना। एक पैरासिटिक भी है हार्बेला, हार्बेला। ये आ गई हमारे पास रेड एल्गी। और रेड एल्गी के बाद हम बात करेंगे ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी में हमने किया था पहला लेमिनेरिया, लेमिनेरिया के बाद किया था फ्यूकस, के बाद किया था डिक्टियोटा, देन किया था हमने सार्गेसम, सार्गेसम के बाद जो बड़ी बड़ी जाइंट की थी मैक्रोसिस्टेस, फिर किया था नीरियोसिस्टेस, नीरियोसिस्टेस, देन किया था एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। ये ब्राउन एल्गी हमने किया था। एंड अभी 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 लेटेस्ट हमने किया ये ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी के बारे में आज देखिए कितनी एल्गी आप लर्न कर पाओगे। क्लेमाइडोमोनास, सेकेंड इज वॉलवॉक्स, स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टियोन, हाइड्रोडिक्टियोन, हाइड्रोडिक्टियोन के बाद हमने किया कारा, उसके बाद किया युल्वा, युल्वा, युल्वा के बाद मैंने आपको बताया कोलर्पा, कोलर्पा के बाद टेट्रास्पोरा, कोलर्पा के बाद टेट्रास्पोरा, टेट्रास्पोरा के बाद एक आप और कहते क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा। तो इन दिस वे ये आपको एक नीट से पहले भी एक रेफरेंस मिल जाएगा कि सारे नाम एक जगह। तो ये था अबाउट द रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स के बारे में, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछे ही जाता है क्वेश्चन। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज जो अभी हमने पहले किया, बहुत अच्छी तरह हमने एक पार्ट किया। आज किया हमने एल्गी। ये एल्गी 3 टाइप की होती हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। पहले है रेड, फिर है ब्राउन, और उसके बाद है ग्रीन। तो इनको रेड, ब्राउन एंड ग्रीन 3 एल्गी हैं। इनको बोला जाता है रोडोफाइटा, इनको बोला जाता है फियोफाइटा, और इनको बोला जाता है क्लोरोफाइटा। तो मैंने बहुत अच्छी तरह आपको इनके तीनों के पहले बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। तो उसमें आपने किया था कि क्लोरोफिल कौन सी है इनमें, डी, सी, बी, ये सभी में है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च, उसमें बताया था तरीका एमएल, मैनिटोल एंड लैमिनेरिन।
और इसमें स्टार्च है। देन आई टोल्ड यू अबाउट द कि ये यूनिसेलुलर फॉर्म कहाँ है, मल्टी सेलुलर कहाँ है। देन मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड बॉडी, मोटाइल स्टेज एब्सेंट हैं, मोटाइल स्टेज एब्सेंट हैं, इसमें प्रेजेंट हैं और उसमें भी प्रेजेंट हैं। ये मेन डिफरेंस आपको बताएंगे। देन नेक्स्ट पार्ट इज, अब जो हम पार्ट करेंगे वो कंपटीशन के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी एंड फंजाई, ये देखिए फंजाई वी हैव डन, एल्गी वी हैव डन नाउ। तो दोनों में हमने डिफरेंस देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है एल्गी और फंजाई में। जो पहला है दैट इज एल्गी की स्टडी को कहते हैं फाइकोलॉजी और इनकी स्टडी को कहते हैं माइकोलॉजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक लैटिन वर्ड एल्जिन से लिया गया है, एल्जियो, एल्जो से। तो एल्गो और एल्ज इज रिलेटेड टू, इस का लैटिन मीनिंग है सीवीड। और ये माइको लैटिन वर्ड है माइकोज, माइकोज इज अ मशरूम, माइकोज इज अ मशरूम। तो ये पहला डिफरेंस है एल्गी का। तो एल्गी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्गी आर ऑटोट्रॉफ, एल्गी आर ऑटोट्रॉफ एंड दे आर हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। तो इसमें दो डिफरेंस, ऑटोट्रॉफ क्यों है? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इसी से रिलेटेड। नो क्लोरोफिल, नो क्लोरोफिल। सेकेंड पार्ट इज दैट क्लोरोफिल है तो रिक्वायर सनलाइट, sunlight required, sunlight may or may not required, or we can say कि they are present in both sun and shade, but mainly shade को प्रेफर करते हैं। देन इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च, और इनमें रिजर्व फूड मटेरियल इज ग्लाइकोजन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो दिस इज ये एक डिफरेंस है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई में जो कंपटीशन में पूछा जाता है। अब आपने एल्गी और फंजाई में डिफरेंस कर लिया, पर ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया, जनरली बुक्स में नहीं दिया गया कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी, क्या है दोनों में, एल्गी और फंजाई में व्हाट आर द सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो पहला तो ये है कि दे आर, इनको हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। बोथ आर थैलोफाइटा, थैलोफाइटा का मीनिंग हो गया कि देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ थैलस। इनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ कुछ नहीं है। नो वेस्कुलर टिश्यू, दोनों में वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, नो वेस्कुलर टिश्यू, नो वेस्कुलर टिश्यू। देन वेस्कुलर टिश्यू के बाद दे बोथ आर यूकैरियोट, both are eukaryote, both are eukaryote। एंड एक और इनमें सिमिलरिटी है दैट नो प्रोटेक्टिव कवरिंग, नो प्रोटेक्टिव कवरिंग
in sex organ. Sex organs are not jacketed. सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट जैकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर है कि फ्रेगमेंटेशन कॉमन फीचर है दोनों का. एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों में होती है. सो दिस इज इवन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों में होगी. सो दीज आर सिमिलरिटीज बिटवीन both algae and fungi. So this is a very important